before I have to do. So, I don't know, they normally start, but I think today, for some reason, there was a delay. So, Mr. Keshav, sorry, we will just begin in 2 minutes. Sure. We were just waiting for everyone to get together. All right. So, just give me 2 minutes and we will definitely begin. Sure. So, good evening to everyone, and of course, a very, very warm welcome to Mo TV. And as usual, it always gives us immense pleasure to have you all with us during this time at 5 p.m. sharp, and also on our journey with you. And as usual, we always want to have the best for all of you. So for this reason, wherein we want you always to be smiling and to remain healthy, we are having this Ayurvedic session with you, where it says Ayurvedic Route to Health in association with Jiva Ayurveda. So as you all know, Ayurveda teaches us to cherish our innate nature, to love and honor who we are. Ayurveda means knowledge of life. It's perceived as one of the most ancient and well-documented systems of medicine. And because we cannot scrub our inner body, we need to learn a few skills to help cleanse our tissues, organs, and mind. And this is the art of Ayurveda. So for today, we have Dr. Keshav Chauhan with us to throw light on this particular topic and to tell you all a little more about Dr. Keshav. Dr. Keshav is an autoimmune and chronic disorder specialist. He has done his specialization in Panchkarma. In addition to consulting patients, he has also formulated proprietary medicines and taught Ayurveda to students in Poland, France, Japan, Lithuania, and USA. He is also involved in research and development at Jiva Ayurveda. So with this, Dr. Keshav, I would like to welcome you to this Mo TV platform, and indeed a pleasure to have you. We've already had some sessions with some of your colleagues as well, but this is such a relevant topic that, and it's such a vast topic where any knowledge is definitely very helpful to all of us here. So once again, welcome and over to you. Thank you very much, Rituji, and congratulations to Moha for the wonderful work you're doing. I'm really impressed by the work, and I'm really looking forward to this, because I think it's a young and budding organization still. But I can see some of the faces here who are full of joy and interacting with each other. So this is really very much needed in today's times. And when I travel abroad, I see the suffering the elderly people are going through. And you won't believe, I'm especially doing workshops on how to do elderly care, elderly massages, and how Ayurveda can help. Because it's a tough condition. It's a tough situation and a tough time when you become old. Of course, the body is not the same. The mind might be still young, but the brain and the nervous system and the joints are not supporting what your mind is thinking and what your mind is wanting to do. So this is where Ayurveda has a huge role to play, so that you can become more independent and more less dependent on others. So as we people become old, there's a lot of dependency on someone else to take care, or some other help that is needed. And I've seen many old people, they're scared of loneliness, and being alone is really a major disease than any other disease they are suffering with. And this loneliness then further creates a huge pile up of emotions, and makes any disease condition, any underlying disease condition more worse. So on that note also, this is a good platform that you all can interact with each other, share your day and share your activities with each other. So it's really, really wonderful to see, and I'm really happy and excited to be discussing about some Ayurvedic tips with all of you today. And of course, we can make it more interactive. You can anytime raise your hand and ask questions, or we'll surely keep some time at the end to have some questions or any other suggestion you want to have.
First, I will begin with the basic understanding of old age, that how Ayurveda or even in Vedas, how they have explained it. So you must all be aware that there are four phases of life according to the Vedas. So first 25 years is like a brahmacharya phase, where one is practicing and learning knowledge and going to school, getting some education degree, and getting qualified. And then the next is the grahastha age, which is for another 25 years, where you make family and enjoy your materials, have some wealth and spend it over yourself or get some comfort in life. And then comes the next phase. So after 50 years, the preparation of old age starts. And now I'm seeing there is premature aging as well in people. And after around 50, they start to feel old age symptoms, and it's really alarming. And this is also an area of concern for people who are around 30, 40. They should be more careful about their health, so that they don't they don't age prematurely. So this period of 50 to 75 years is called as vanaprastha, and 75 to 100 is called as sannyasa. So 50 to 75 vanaprastha means when you are gradually retiring from your duties and passing on your responsibilities to the next generation, or like we do in office. When you retire at the age of 60 years, then you give your responsibilities to someone else who will take care of it. Similarly, every similar process happens for all other responsibilities as well. Your family responsibilities, your if you have your own business, then those responsibilities. But this is what is missing. We what I see, people at old age, they usually retire from their work, but very strongly emotionally to their family responsibilities, to their family emotions. And sometimes when they are not able to control the family decisions, or the things are not the way they want, then it emotionally hurts them a lot. Okay, so uh, this this is also a very important step, a very important preparation that is needed, so that you can prepare yourself mentally also for the later stage of the life. Okay, so just like we study and we get educated so that we can earn well, we earn well so that we can sustain our family, we sustain our family so that the family grows well. So similarly, this process of vanaprastha, getting detached from your responsibilities and passing on the baton to the next generation is very, very important. And and there should, as the name of the organization has moha in it. So moha is attachment. So you have to go without moha, amoha, or you have to detach at this stage of life, because attachments will further create more emotional problems and psychological issues. Okay, so I deal with a lot of elderly patients, a lot of patients suffering with Parkinson's, Alzheimer's. And when I go into their deep into their history, then I found out that there is some unfulfilled desire, or controlled emotion, or you can say the desire to control the things around, which is not fulfilled, and this results into such problems. So again, it's another side of the story, how all these diseases develop. But this is an important critical angle. So if you see, India is a country which had very least cases with the Alzheimer's and Parkinson's, but they are growing now. Okay, because India was a country where the culture of living was completely different, and the elders were also a very important part of the society, or of the family. But things have changed drastically in past few years, and there is a sense of loneliness, a sense of lack of love in elderly patients, which is resulting into a lot of issues. So that's why I wanted to start with that, so that just to get the tone right. I know physically we have so many things now. There is lab investigations, there is insurance,
you can have a nurse at home all the time, you can do everything. But what about emotions and the mental peace? So that is also an important area which we should be focusing about. That is the mental well-being. Okay, so I hope everybody is comfortable with English. या हिंदी में थोड़ा बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा? Dr. Keshav, both languages would be really nice. Both languages, okay? हिंदी इंग्लिश दोनों बोलिए। दोनों बोले? ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें और शेयर करूँगा जो आप लोग अपने रेगुलर लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं, रेगुलर प्रैक्टिसेस, सो विच हेल्प यू इन अ इजी ओल्ड एज। तो ओल्ड एज, सबसे पहले तो ओल्ड एज कोई बीमारी नहीं है। ओल्ड एज इज स्वभाव, वी कॉल इट इन आयुर्वेदा एज वेरी नेचुरल थिंग दैट इज हैपनिंग। जिस तरह से यंग एज आती है, चाइल्डहुड आती है, उसी तरह से ओल्ड एज भी आता है। तो हम यंग एज को डेफिनेटली ज़्यादा एंजॉय करते हैं, एंड वी डोंट वांट टू ग्रो ओल्ड बिकॉज वी आर स्केर्ड कि बुढ़ापे में कुछ ना कुछ बीमारी लग जाएगा, मैं इतना एंजॉय नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, जो भी चैलेंजेस आएंगे ओल्ड एज के। पर आयुर्वेद में ऐसा मानना है कि आप 100 वर्षों तक अपने सभी सेंस ऑर्गन्स को अच्छी फंक्शनिंग में रख सकते हैं, आप अपने सभी बॉडी पार्ट्स को अच्छी हेल्थ में रख सकते हैं, और आपका जो लाइफ है इट इज़ नॉट ओनली क्वांटिटेटिव बट ऑल्सो क्वालिटेटिव। क्वांटिटी भी अच्छा रहे और क्वालिटी भी अच्छा रहे। तो यही मेन प्रयोजन है आयुर्वेद का, दैट यू लिव अ लॉन्ग लाइफ एंड ऑल्सो अ हैप्पी लाइफ। आई एम सॉरी, ओके। तो ऐसा नहीं है कि केवल लाइफ स्पैन बढ़ाना ही टारगेट है कि 10 गोलियां रोज खाएं लेकिन जिंदा रहें। ये आयुर्वेद का गोल नहीं है। आयुर्वेद का गोल है कि आप स्वस्थ रहें और अपनी लाइफ को लंबा भी रखें और हैप्पी भी रखें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो द हैप्पीनेस इज द वेरी कोर पार्ट ऑफ आयुर्वेदिक मैनेजमेंट और द आयुर्वेदिक डेफिनेशन इटसेल्फ। तो इसीलिए ये सारा जो 100 वर्षों का मैंने जिक्र किया, तो उसके टिप्स आयुर्वेद ने बहुत सारे दिए हैं कि कैसे आप अपने आप को 100 वर्षों तक हेल्दी रख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा, हाईलाइट करूंगा, ताकि उस चीज़ को प्रैक्टिस में लाया जाए। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका अग्नि। अग्नि का मतलब होता है आपका मेटाबॉलिज्म, वो डाइजेस्टिव फायर जिसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं। तो आयुर्वेद का मानना है कि जितना पुराना आपका अग्नि है उतना पुराना आपका शरीर हो चुका है। ठीक है, यानी कि जितना मेटाबॉलिज्म आपका पुराना है, ओल्ड है, दैट ओल्ड योर बॉडी विल बिकम। सिंपल डेफिनेशन, यानी और सिंपल समझें इसको कि द हेल्दी योर लिवर इज, द यंगर योर लिवर इज, द यंगर यू आर। तो जितने भी आपके बाकी ऑर्गन्स हैं, आपके जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, नर्वस सिस्टम है, सबका हेल्थ, आपके इवन हार्ट का हेल्थ आपके लिवर के ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है, तो मॉडर्न साइंस में या जो हमारा आजकल का एजुकेशन है उसमें हम हार्ट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, हार्ट हेल्थ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और उसी के अराउंड सारा हमारा फोकस रहता है कि हार्ट अच्छे से बस काम करता रहे, उसमें कोई इशू ना आए। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन आपका लिवर है, या फिर उसको हम कहें कि ओवरऑल जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वो यंग है तो आपके सारे ऑर्गन्स की हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी बॉडी रेजुविनेट कर सकती है अपने आप को, आपकी बॉडी रिकवर कर सकती है, जो वेयर एंड टेयर है बॉडी का वो जल्दी से रिपेयर होगा। सो दिस इज हाउ द बॉडी स्टेज यंग। सो आयुर्वेदा हैज अ सेपरेट ब्रांच, यू नो, जिसको हम रसायन कहते हैं या फिर जराध्याय के नाम से है। तो उसमें उन्होंने पूरा जिक्र किया है कि हाउ यू कैन मेंटेन योर यूथ, यू नो, हाउ यू कैन स्टे यंग, and even in old age you delay your aging process। तो ये पूरा ब्रांच डेडिकेटेड है उसमें। तो उन्होंने वहाँ पर सबसे पहला एक्सप्लेनेशन आप मेटाबॉलिज्म का ही किया कि हाउ व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप योर मेटाबॉलिज्म गुड एंड हेल्दी। तो उसके लिए अब क्या करें, तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है। तो आजकल इन्वेस्टिगेशंस मेरे हिसाब से जितने भी इस ग्रुप में लोग हैं सब लोग कराते होंगे, अल्ट्रासाउंड कराते होंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट कराते होंगे, जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो उसमें फैटी लिवर
एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा कि फैटी लिवर आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है। तो फैटी लिवर इज एन इंडिकेटर दैट योर लिवर इज नॉट वर्किंग वेल, आपका लिवर हेल्दी नहीं। और फैटी लिवर पे फैट जमा होने से बाकी सारे ऑर्गन्स आपके बूढ़े होने लगते हैं उसके बाद, ठीक है, क्योंकि लिवर पे ही एनर्जी स्टोर होती है, लिवर ही फैट को मेटाबोलाइज करके बॉडी से उसको यूज अप करता है। अगर उस पर फैट ज़्यादा जमा है तो एनर्जी कम हो जाएगी, आलस रहेगा शरीर के अंदर, सुस्ती आएगी, खूब खा रहे हैं फिर भी एनर्जी नहीं है। ओके, सो बिकॉज योर मसल्स आर नॉट यूजिंग अप एनी एनर्जी, सब फैट स्टोर होता जा रहा है बॉडी के अंदर। तो फैटी लिवर होना एक इंडिकेटर है कि हम एजिंग और जल्दी हो सकती है। उसके साथ साथ जब लिवर फंक्शन टेस्ट करेंगे तो उसमें 2 एंजाइम्स होते हैं, SGOT SGPT, या आप लिख सकते हैं SGOT SGPT। ये 2 एंजाइम्स को हमें बिलो 30 रखना है। ओके, सो यू नो यूजुअली रेंज उसका 40 के आसपास होगा आपके लैब इन्वेस्टिगेशंस में, और थोड़ा 30 के नीचे उनको रखेंगे तो लिवर और जवान बनता है आपका, और यंग बनता है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात यह कि अगर अभी किसी का फैटी लिवर ऑलरेडी है, अगर लिवर एंजाइम्स बढ़े हुए हैं, तो घबराने की बात नहीं है। लिवर एक हमारा ऐसा ऑर्गन है जिसको हम रेजुविनेट कर सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं। उसमें कुछ डैमेज आया तो पिछली स्टेज पर रिकवर कर सकता है। तो भगवान ने जब उसको फिट किया तो ये फैसिलिटी भी दे दी कि इसमें कुछ खराबी आ जाए तो उसको आप रिपेयर कर लें। तो कंपेयर टू एनी अदर ऑर्गन इन द बॉडी, और बाकी कोई ऑर्गन ऐसा नहीं है जो इतने अच्छे से रिवाइव हो सके, रिकवर हो सके, रिपेयर हो सके, रीजनरेट हो सके, जो कैपेसिटी लिवर के पास है, ठीक है। तो सो व्हाट टू डू नाउ, हाउ टू कीप आवर लिवर हेल्दी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। तो क्या करना है आपको, आपका जितना भी क्षमता है इस समय, शारीरिक क्षमता जितना भी है, उसके अनुसार अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना है। ये नहीं समझना है कि अब बूढ़े हो गए तो अब ठीक है, अब बैठ जाते हैं, बच्चों को देखेंगे, पोता और पोती को खेलते हुए देखेंगे और आराम से बैठे रहेंगे। तो ये वाला रूटीन नहीं होना चाहिए। सो स्टे एक्टिव। आप जितना भी, अगर इवन स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं आप इस एज में, देन गो फॉर इट। अपने आप को एज का बैरियर अपने दिमाग में मत रखिए, ठीक है। सो आई नो पीपल हु आर इन 70s, लेट 70s, एंड दे आर प्लेइंग स्पोर्ट्स। वो वॉलीबॉल खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं। तो वो पेशेंट आते हैं हर तरीके के, जो वो करना भी चाहते हैं कि, एंड दे वांट टू यूज आयुर्वेदा फॉर दैट, सो दैट दे कीप डूइंग इट। तो जितना भी फिजिकल एक्टिविटी आपका शरीर आपको साथ देता है करने के लिए, उतना आप जरूर करिए। अपने आप को आइडल मत रखिए, ठीक है। क्योंकि होता है रिटायरमेंट हो गए हैं, पोस्ट रिटायरमेंट क्या करें, घर में कुछ काम भी नहीं है, सुबह फैमिली मेंबर्स हैं, शाम को हैं, लेकिन दिन में अकेले बोर होते हैं तो सो जाते हैं। तो ये नहीं रखना है। लाइफ को बोरिंग मत बनाइए, लाइफ को एंजॉय करना है आपको, ठीक है। आपको खुश रहना है, आपको एंजॉय करना है, और सो के उसको वेस्ट नहीं करना है टाइम को। टाइम इज वेरी लिमिटेड, और वो टाइम वापस नहीं आने वाला। लिवर वापस आ जाएगा, टाइम वापस नहीं आएगा। Mind is good. You can use it for your processes, spiritual growth, or whatever you are intending in your life, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना एक्टिविटी आप मेंटेन रखें। जितना आप रेस्ट पे जाएंगे उतना बॉडी के अंदर फैट एक्यूमुलेट होगा, लिवर पे फैट एक्यूमुलेट होगा। सो ट्राई टू स्टे एक्टिव, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। सेकंड, अपना जो डाइट है उसको आपको मॉनिटर करना है। तो आयुर्वेद का मानना है कि हर 10 वर्ष के बाद हमारी बॉडी कुछ ना कुछ लूज कर देती है, और हर 10 वर्ष के बाद एक ओल्ड एज चीज ऐड होती चली जाती है। तो जब आप 60 वर्ष के हो जाते हैं या 50 वर्ष के बाद जब हो जाते हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, थोड़ा वेरिएबल होता है। कभी अच्छा पचाएगा, कभी अच्छा नहीं पचाएगा, कभी गैस बनेगी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी थोड़ा खा के पेट भर जाएगा, कभी ज़्यादा क्वांटिटी खा लेंगे। तो एक वेरिएशन रहता है। और जैसे ही आप और ऊपर जाते जाएंगे अपनी एज में, वो मेटाबॉलिज्म जो है आपका और जो है थोड़ा स्लो, थोड़ा डल, थोड़ा गैसी, थोड़ा कॉन्स्टिपेटेड, थोड़ा लो एपेटाइट, इस तरफ को बढ़ने लगता है। तो ऐसे में अब जो फूड आप ले रहे हैं उसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। सो क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो क्वांटिटी ऑफ फूड मीन्स एक तो घर का बना हुआ खाइए सारा, क्वालिटी ऑफ की पहले बात करते हैं। घर पे बना हुआ सारा खाए, डोंट ट्राई टू टेक टू मच ऑफ आउटसाइड फूड।
तो घर पे जो भी बनता है, जो आपका खाना आपने अभी तक नहीं लाइफ में, ठीक है, अगर आपने रोटी सब्जी खाई है या चावल खाने की आदी हैं, या जो भी आपका डाइट रहा है जिसके लिए आप कस्टमाइज्ड है, आपका सिस्टम कस्टमाइज्ड है, उस पर आप ज्यादा फोकस करिए। अभी नया डाइट आप इंक्लूड करेंगे, वेस्टर्न डाइट लेके आएंगे या कोई और डाइट अभी लेकर आएंगे, तो बॉडी उतनी जल्दी अडेप्ट नहीं हो पाएगा। अभी आपकी अडेप्टेबिलिटी थोड़ी स्लो है इस चीज में, ठीक है। तो कोशिश करिए जिस चीज से आप अडेप्टेड हैं, इतने वर्षों तक जो खाया है, उसी डाइट आप आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। घर में कुछ पकवान बनते हैं तो अपना फिर भी रोटी सब्जी खिचड़ी दाल चावल उस तरह का खाना ही लें, पकवान थोड़ा बहुत ही एंजॉय करें। ये बहुत जरूरी है टू सेलेक्ट व्हाट यू आर ईटिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये कोई सजा नहीं है, ये आपको हेल्दी रखने का एक स्टेप है कि अब मेरी एज यहाँ पहुंच गई, नाउ आई चेंज व्हाट आई ईट, ठीक है। सारी जिंदगी आपने एंजॉय किया है खाना पीना, तो अभी अगर नहीं करेंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यू कैन डेवलप टेस्ट इन न्यू फूड वेरी क्विकली। 2 से 3 हफ्ते लगते हैं नई हैबिट को, नए टेस्ट को डेवलप होने में, तो उसलिए वो आपको थोड़ा अपना उस चीज का ध्यान रखना, ओके। सो अगेन व्हाई आई एम टेलिंग यू, आई एक्सपीरियंस पेशेंट्स हु डू वेल बाय रिस्ट्रिक्टिंग देयर डाइट एंड दे स्टे हेल्दी। मैं पेशेंट्स को without very strict 5 साल में कॉम्प्लिकेशन हो गई, किडनी खराब, फिर 10 साल में हार्ट खराब, अन्य कॉम्प्लिकेशंस, एंड दे रिड्यूस देयर लाइफ स्पैन। तो इसलिए द क्वालिटी ऑफ फूड दैट यू आर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट शुड बी लेस ऑन फैट, फ्राइड फूड आपको बिल्कुल मिनिमम रखना है। थोड़ा बहुत घी अपने खाने में डाल सकते हैं अगर कुछ फैट लेना चाहते हैं तो, अदरवाइज उसको कम रखिए। सेकेंडली, चीनी आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, आपका लिवर चीनी प्रोसेस नहीं कर पाता है, ठीक है। जब तक आप बच्चे हैं आप कितना मीठा प्रोसेस कर सकते हैं, यंग एज में थोड़ा कम हो जाता है, ओल्ड एज में और कम होता है। साउंड इज नॉट इसलिए मिठाई, साउंड इज नॉट कट कट के आ रही है आवाज। साउंड इज नॉट प्रॉपर टू एवरीवन। नहीं, we can hear, I think network problem है उनका। हाँ, this sound is very clear. We can hear Dr. Keshav. We can hear him very clearly. Okay, all right. कट कट के आ रही है। So maybe मैम आपका शायद नेटवर्क प्रॉपर नहीं होगा because others can hear well. तो ये रिकॉर्ड हो रहा है शायद, maybe you can listen to the आपका recording नेटवर्क later. लो आ रहा है, आपका नेटवर्क लिखा आ रहा है और बीच बीच में ना लैग हो रही है कहीं कहीं। हमें तो बिल्कुल ठीक आ रहा है जी, हमें तो Chauhan ठीक sir, आ you are रहा है। doing wonderful. Please हम लोग continue. का भी ठीक आ रहा है। चलिए हमको भी ठीक आ रहा है। Please continue. I think we, ladies and gentlemen, we'll just continue. Dr. Keshav, in case we face a problem, then probably you can go on hotspot or something. But as of now, we can hear you. Okay, all right. So it is showing low bandwidth, but it's fine. Okay. ऑलराइट, सो नेक्स्ट चीज, मैं अभी चीनी की बात कर रहा था कि चीनी को आप बिल्कुल कम रखें। उसका रिप्लेसमेंट आप यूज कर सकते हैं, थोड़ा गुड़ कभी खा सकते हैं, जैगरी जिसको बोलते हैं, या कच्ची खांड अगर आप लोग जानते हैं और वो अवेलेबल है आपको, तो उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इट इज अनप्रोसेस्ड शुगर, तो जितना प्रोसेसिंग होगा, रिफाइन हो जाएगा, उतना इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर योर लिवर, ठीक है। तो वो आप मीठे का रिप्लेसमेंट ऐसे करिए। नेक्स्ट इज क्वांटिटी ऑफ फूड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ फूड में अपना एपेटाइट के हिसाब से खाइए, ठीक है। जिस डाइट में आपको हैवीनेस ना लगे पेट के अंदर, जिस मात्रा में आपके चेस्ट में हैवीनेस ना हो या पेन ना हो, बॉडी में स्टिफनेस ना हो, वो मात्रा आपके लिए सही है, ठीक है। सो आपने सुबह अगर ब्रेकफास्ट किया और आप लंच तक अगर आपको भूख लगने लगी, इसका मतलब आपने सही क्वांटिटी में खाना खाया था। अगर आपको लंच तक भूख नहीं लगी, मे बी योर क्वांटिटी वाज नॉट करेक्ट, तो उस हिसाब से अपना क्वांटिटी आप मॉनिटर करें। जिस भी क्वांटिटी में आपका पेट लाइट रहता है वहीं तक खाना है। पेट में हैवीनेस नहीं, हैवी होने का वेट नहीं करना, ओके। सो दैट्स हाउ यू मॉनिटर योर क्वांटिटी, एंड व्हाट क्वांटिटी यू एट इन योर यंग एज, उससे थोड़ा कम करिए, ठीक है।
सो ये दो चीज़ें फूड में आपको ध्यान रखनी है, क्वालिटी ऑफ फूड एंड क्वांटिटी ऑफ फूड. Alright, so I was talking about consuming some fruits regularly to keep your liver healthy. तो जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनमें कुछ लाइव एंजाइम्स होते हैं जो कि आपकी डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं. तो इसलिए कुछ रॉ फूड हमें डेली खाना चाहिए. सो एनी फ्रूट दैट सूट्स यू. यूजुअली होता क्या है, ओल्ड एज में फ्रूट खाने से कई बार गैस बनता है ज़्यादा. तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एप्पल आपको खाना है या पेयर खाना है, तो उसको थोड़ा सा बॉईल कर लें उसको और मैश करके उसका प्यूरी बना लें और थोड़ा उस फॉर्म में उसको खाइए. ठीक है. एंड एनी अदर फ्रूट लाइक पपाया और चीकू और एनी अदर सीजनल फ्रूट जो भी उस सीज़न में अवेलेबल है. अभी आने वाला है गुआवा आएगा कमिंग सीजन में. तो इस तरह के फ्रूट्स थोड़े बहुत आप रेगुलरली लेते रहें, तो उससे आपका अगेन इट इज़ वेरी गुड फॉर लिवर हेल्थ. और कोशिश करिए उसको सुबह के टाइम में या मैक्सिमम दोपहर तक आप खा लें. अगर शाम को फल खाएंगे तो ज़्यादा गैस बनाता है, ज़्यादा तकलीफ देगा. तो इसलिए दोपहर के बाद आप फ्रूट्स खाना अवॉइड करें और दोपहर से पहले उनको खाएं. ठीक है. ये एक और चीज़ है जो आप कर सकते हैं. तीसरा, देन देर आर अ लॉट ऑफ मेडिसिन्स एंड हिपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स इन आयुर्वेदा जिसको आप रेगुलरली कंज्यूम कर सकते हैं फॉर योर लिवर हेल्थ. कुछ ऐसे भी आयुर्वेद में दवाइयाँ हैं जो कि दे आर एंटी एजिंग. फॉर एग्जांपल ब्राह्मी, अश्वगंधा, शतावरी, आपने शायद इनका नाम सुना हो. अर्जुन इज ऑल्सो देयर. तो ये कुछ एंटी एजिंग हर्ब्स हैं जिनको आप रेगुलरली एज अ फूड सप्लीमेंट विच यू कैन टेक, और इसको आप लाइफ लॉन्ग कंज्यूम कर सकते हैं. इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. So what these herbs do, they increase the repair process of the body. जब आप सोएंगे रात को तो उस समय जो बॉडी रिपेयर होती है तो उस प्रोसेस को ये थोड़ा फास्ट कर देते हैं और बॉडी आपका रिपेयर हो जाता है एंड टिश्यू डैमेज बचता है. ठीक है. नेक्स्ट, अब नींद की बात की तो नींद भी बहुत ज़रूरी है आपके लिवर हेल्थ के लिए, और आपको नॉट ओनली फॉर लिवर बट फॉर योर जॉइंट्स, फॉर योर नर्वस सिस्टम, दैट यू स्लीप ऑन टाइम. जितना आप टाइम पे और अच्छा सोएंगे उतना आपका बोन्स, नर्वस सिस्टम भी हेल्दी रहेगा. ठीक है. तो टाइम पे सोने का मतलब है यू गो टू बेड बाय 10 o'clock, यू आर इन बेड बाय 10 o'clock, और एंड यू वेक अप अराउंड 6 or 5 or 4 व्हाटएवर सूट्स यू. पर जल्दी सोना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. जितना आप जल्दी सोएंगे उतना आपके लिवर को और जो मेटाबॉलिक ऑर्गन्स हैं लाइक पैंक्रियाज, स्प्लीन, इनको समय मिलता है अपने आप को रिपेयर करने का. ठीक है. तो हमारा जो बॉडी है पूरा वो एक डे के रिदम के साथ चलता है. सो नाइट टाइम बिटवीन 10 to 2 is the time when your gastric organs and the liver they need some sleep. उस समय वो अगर आप सोएंगे तो वो अपने आप को रिपेयर कर पाते हैं. अगर नहीं सोए तो वो ज़्यादा एसिडिक हो जाते हैं और फिर उनको उनका जो एनर्जी पोटेंशियल है वो कम होता है एंड दे बिकम वीक. तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्लीप ड्यूरिंग दिस टाइम. ठीक है. तो आजकल हमारे पास बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स हैं मेंटल एजिटेशन के लिए, मोबाइल फ़ोन है एंड अदर एक्टिविटीज़. एंड I see, this is what I have observed in the society, that the people, and especially old age people also, they spend a lot of time at night on mobile and TV. So which is not a very ideal thing to do. तो उससे आपका नींद खराब होगा तो बीपी बढ़ सकता है, शुगर बढ़ सकता है, लिवर डिस्टर्ब होगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी. और नींद पूरी ना होने से बाकी एसेंशियल न्यूट्रिशन भी डेफिशिएंट होने लगता है. तो इसलिए एक अच्छा टाइमली नींद बहुत ज़रूरी है आपके लिए. ठीक है. जो भी सारे काम रात में करने के हैं वो हम सब सुबह जल्दी उठ के भी कर सकते हैं, वो दिन के समय में भी कर सकते हैं. कोई चीज़ चेंज नहीं होती है. इट्स जस्ट हाउ वी आर अप्रोचिंग इट. सो आई रिक्वेस्ट यू टू हैव अ गुड स्लीप एट नाइट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद एक और मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा, दैट इज़ अबाउट ऑयल मसाज. तो ऑयल मसाज के बिना तो हम आयुर्वेद में दिनचर्या को पूरा नहीं मानते हैं. तो आयुर्वेद में ऐसा कहना है कि अभ्यंगम आचरेत नित्यम, विच मीन्स यू शुड डू अभ्यंगा और बॉडी मसाज अप्लाइंग सम ऑयल ऑन द बॉडी एवरी डे. और ये वाला जो एज होता है ओल्ड एज, इसमें शरीर में ड्राइनेस नेचुरली बढ़ता है.
क्योंकि ये एज है जब वात दोष बढ़ता है आयुर्वेद के अनुसार, और वात दोष बॉडी को ड्राई करता है, और इसमें आप देखेंगे कि आपके जो हेल्दी फ्लूइड्स हैं जॉइंट्स में वो सूखने लगते हैं, जो नसों में फ्लूइड है वो सूखने लगता है, दिमाग में फ्लूइड जो है वो ड्राई अप होने लगता है, तो बॉडी आपकी ड्राइनेस की तरफ बढ़ती है। तो ऐसे में उसको ज़्यादा लुब्रिकेशन चाहिए। अब इंटरनली अगर लुब्रिकेट करेंगे तो वो तो उतना पचाने का शक्ति नहीं है, तो इसलिए एक्सटर्नल लुब्रिकेशन एक बहुत की फैक्टर बन जाता है। ठीक है, तो डेली थोड़ा सा नहाने से पहले अच्छे से ऑयल लगाइए अपनी बॉडी पर। तो ऑयल के लिए यू कैन यूज सेजमी ऑयल, तिल का तेल, और अगर अभी जैसे मौसम है तो कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं, जो कि थोड़ा कूलिंग होता है एंड सूदिंग होता है। और थोड़ा देर बॉडी पर रखिए उसको, 15 मिनट 20 मिनट, एंड देन टेक अ वार्म शावर। ठीक है, और अगर हफ्ते में 10 दिन में एक बार कोई मसाज कर दे तो वो और अच्छा है, सोने पे सुहागा है। सो यू कैन look for some massage center nearby, or we have a very nice facility at Jiva, जहाँ पर you can come over, stay and get some massages done for a few days. तो मसाज हैं, शिरोधारा है, and other therapies which help in rejuvenation and enhance the lubrication of the body. तो जब भी आप मसाज करते हैं उससे क्या होता है कि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा जाता है, वहाँ पर जो ब्लॉकेजेस हैं, टॉक्सिन्स जमा हैं, वो लिम्फेटिक ड्रेनेज से, लिम्फ जो आपका है वो उसको साफ करता है, तो गंदगी को साफ करता है, और आपकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है, बोन स्ट्रेंथ बढ़ता है, नर्व स्ट्रेंथ बढ़ता है, इसके साथ साथ लाइफ स्पैन बढ़ती है। सबसे बड़ी बात यह है कि डेली मसाज करने से आपको दीर्घायु मिलेगा, तो जो भी लोग लंबा जीना चाहते हैं वो लोग डेली मसाज ज़रूर करिए। ओके, सो इसके लिए काफ़ी मेडिकेटेड ऑयल्स भी अवेलेबल हैं। यदि आपको कोई एसोसिएटेड कंप्लेंट्स है, फॉर एग्जांपल दर्द भी होता है जोड़ों में, सो यू कैन ऑप्ट सम मेडिकेटेड ऑयल एज वेल। सो लाइक वी हैव जीवा पेन काम ऑयल, जो आप अफेक्टेड एरिया में मसाज कर सकते हैं। मसल्स कमज़ोर हैं तो उसके लिए मसाज ऑयल है, जिसके अंदर अश्वगंधा है, बादाम है, शतावरी है, जो कि मसल्स को आपके स्ट्रेंथ देगा। So there are different options of, there are more than hundreds of oils available in Ayurveda that can be chosen for different purpose. पर अभी थोड़ा बेसिक से भी आप यूज करेंगे, so it is also well and good. But oiling is very very important. जितना important ब्रश करना है ना डेली, क्योंकि हम दांतों की केयर करना चाहते हैं, दांत खराब ना हो, उतना ही important ऑयल करना है। जब ऑयल करेंगे तो एक शील्ड मिलेगा, तो स्किन आपका ऑयल को एब्जॉर्ब करता है, इट ईट्स अप एंड इट गिव्स यू अ प्रोटेक्टिव शील्ड अराउंड, जिससे आपको एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से, टेम्परेचर से, बैक्टीरिया से, वायरस से, सबसे प्रोटेक्शन मिलता है। ओके, द मोर लुब्रिकेटेड यू आर, द बेटर इम्यूनिटी यू हैव एंड द बेटर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक चेंजेस अराउंड। तो ये थोड़ा ये भी प्रैक्टिस में लेकर आएँ। अगर समय नहीं है या फिर पूरी बॉडी पर नहीं हो पाता है सेल्फ मसाज, तो एटलीस्ट टॉप ऑफ द हेड, योर हैंड्स एंड फीट, ये 3 एरियाज ऐसे हैं जिस पर आप मसाज करिए। तो इससे आपका पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, सारा हाथों में, पैरों में, सर में खून का सप्लाई अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। नहीं तो ठंडे हो जाएंगे, हाथों पे ठंड हो जाएगा, पैर ठंड हो जाएगा, दिमाग में खुश्की आएगी। तो इसलिए इन 3 एरियाज में तो आप डेली मसाज करें, जब टाइम मिलता है तो पूरे बॉडी का मसाज करिए। सो वेरी वेरी important aspect to stay healthy. So I think we are running out of time, so these are some basic tips. इससे ज़्यादा बोर नहीं करूँगा आप लोगों को। So these are some general things that you can start doing with, and maybe when we have more sessions going forward, so we can talk about. Dr. Keshav, we have time till 6:30. 6:30. Or you want? Yes. Yeah. So you can continue, and then we can take the question answer round for about 15-20 minutes at the end and close at whatever time. Okay, so I think I will speak for around 5-8 minutes more, and then we can take questions. Okay. Sure. Yeah. ठीक है, तो अभी सारा डिस्कशन मैंने जो किया, it was for the body, की how you can keep your body healthy. Next is a very important part is about the mind as well. तो जो मैंने जिस चीज़ से स्टार्ट किया था अपना टॉपिक, कि इमोशनल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेंटल हेल्थ एट दिस एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। तो उसके लिए अभी बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान में रखना है,
दैट इज अबाउट डिटैचमेंट. सो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है. हम पूरे सारी जिंदगी अपनी चीज़ों से अटैच्ड रहते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है डिटैच करना. और जब डिटैचमेंट नहीं हो पाता है, दिस इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स, यू नो. ऑल जैसे डिटैचमेंट हो गया मेरा अब से. आई एम सॉरी. तो डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप घर छोड़ के भाग जाएं, जंगल में चले जाएं. वो तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है. वो भी एक फेज है, जो लास्ट फेज है संन्यास का. उसमें उन्होंने यही बताया कि आप पिलग्रिमेज पे जाइए, आप अपना सब कुछ त्याग के आप कहीं आश्रम में, पहाड़ों में, जंगल में जाकर रहें और यू नो प्रिपेयर फॉर मोक्ष, तो विच इज़ द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ. सो आयुर्वेद का भी ऐसा ही मानना है कि मोक्ष जो है आपका अल्टीमेट एम है लाइफ का. And this is what we have to achieve. So that is what we are living for. So we have to prepare for it as well. वो ऐसा ही अपने आप नहीं आ जाएगा. And also staying attached in old age will not help you in any sense. क्योंकि उन अटैचमेंट से आप ज़्यादा enjoy नहीं कर सकते, क्योंकि वो बॉडी आपको सपोर्ट नहीं दे रहा है. आपके पास अगर कार से अटैचमेंट है, उस कार को आप ज़्यादा तेज़ नहीं चला सकते हैं. किसी और चीज़ से अटैचमेंट है, कोई खाने से अटैचमेंट है, उसको ज़्यादा एंजॉय नहीं कर सकते हैं. सिमिलरली आपका जो बॉडी और सेंस ऑर्गन्स हैं, अब वो एंजॉयमेंट वाली स्टेज से थोड़ा दूर जा चुके हैं. तो वो अटैच अगर रहेंगे, एंजॉय कर नहीं पा रहे हैं, तो ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है माइंड. सो इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट टू डिटैच. एंड देयर इज़ अ प्रोसेस, उसमें टाइम लगता है. तो जो वानप्रस्थ वाला स्टेज मैंने बताया था, विच स्टार्ट्स आफ्टर 50, तो उन्होंने वैदिक पीरियड में हमें 25 साल दिए थे डिटैच होने के लिए. 25 साल कि आप 25 साल धीरे धीरे डिटैच होइए, तब वो स्टेज आएगा कि आप संन्यास के लिए जा सकते हैं. तो इफ वी स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ एंड वी प्रैक्टिस सम डिटैचमेंट इन सेंस कि धीरे धीरे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फ्री होकर वी पास ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नेक्स्ट जनरेशन फॉर, चाहे वो फैमिली का डिसीजन मेकिंग है और अदर stuff that is going around, and you focus more on your inner self. तो उसके लिए practice some yoga every day, practice some meditation and mantra chanting if you are interested. Anyone is interested in chanting. तो chanting एक बहुत अच्छा process है आज की डेट में, अपने emotions को clean करने के लिए, अपने mind को थोड़ा relax करने के लिए, and to stay more happy and at peace. You can do it once a week or whenever you have time, and group chanting is even very good. तो अगर जैसे यहाँ पर भी आप लोगों का ग्रुप है, तो अगर आप एक ग्रुप में चैंट करते हैं तो इट इज़ वेरी पावरफुल. आप कभी एक्सपीरियंस करिए इस चीज़ को, यू विल फील रियली क्लेंस्ड. ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है. दूसरा, ब्रीदिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप ढंग से अपना ब्रीदिंग पर फोकस करें, तो वो उससे भी आपका इमोशनल क्लेंजिंग होता है. And your mind becomes more strong to get detached, so ultimately. Okay, so how to breathe is also an art. हम लोग सांस सभी लेते हैं, पर बहुत सही तरीके से सांस सभी लोग नहीं लेते हैं, गलत तरीके से लेते हैं. इवन कुछ लोग प्राणायाम भी गलत तरीके से करते हैं, what I see. So एक सिंपल सा मैं आपको तरीका बताता हूँ, that you practice breathing. तो अपना पूरा शरीर आप रिलैक्स रखें, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए, कहीं टाइटनेस या स्टिफनेस ना रखें. अपनी आंख बंद करिए, इवन फोरहेड एंड आईज, एवरीथिंग रिलैक्स्ड, एंड देन डीप ब्रीथ. तो जैसे अभी सांस ले रहे हैं तो कोई एफर्ट नहीं लग रहा है, आराम से सांस जा रहा है. और जब कई बार हम डीप ब्रीथ करते हैं तो पूरा एफर्ट, चेस्ट भी मूव हो रही है, शोल्डर भी मूव हो रहा है, चेहरा भी अजीब सा बन जाता है. पर ये सब करने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू स्टे जस्ट रिलैक्स. आपका एक भी बॉडी पार्ट मूव नहीं होना चाहिए जब आप डीप ब्रीथ करें, और आराम से फिर गहरी सांस लीजिए. ठीक है, एंड ड्यूरिंग दिस डीप ब्रीथ, व्हेन यू आर इनहेलिंग, यू कैन काउंट, कैन लाइक 1 2 3 4 5 6, एंड देन एक्सहेल एंड 1 2 3 4 5 6. तो जितना आप डीप लेंगे ब्रेथ, उतना ऑक्सीजन दिमाग में पहुंचता है, और पूरा आपका दिमाग और नर्वस सिस्टम पूरा रिलैक्स होता है उससे. तो यूजुअली वी ब्रीथ अराउंड 16 to 20 times in a minute. When you do deep breathing, you will be breathing maybe 6 to 10 times in a minute. तो पूरा आधा हो गया. ठीक है, तो होता क्या है, जब आप इमोशनल फेज में होते हैं, you are in stress, you are in anger, or you are anxious, anything,
तो आपका ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो जाएगा, आपके इमोशंस आपकी ब्रीदिंग को चेंज करते हैं, ठीक है। तो उल्टा अगर करना है, इमोशंस को चेंज करना है, तो वो ब्रीदिंग के थ्रू हो सकता है, ओके। सो इमोशंस चेंज ब्रीदिंग एंड ब्रीदिंग कैन चेंज इमोशंस। सो व्हेन यू आर डीप ब्रीदिंग इट विल चेंज योर इमोशंस। कभी भी फ्रस्ट्रेशन हो, गुस्सा आ जाए, बुरा लग रहा है या और स्ट्रेस हो रहा है, एनीथिंग, जस्ट रिलैक्स समवेयर, लेट जाओ, बैठ जाओ, जो भी कंफर्टेबल है, एंड प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग फॉर 5-10 मिनट्स। तो 10 मिनट बाद आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो ब्रीदिंग से आपका इमोशंस चेंज हो जाएगा। एंड दिस यू कैन मेक अ हैबिट। तो सारा दिन सांस तो ले ही रहे हैं, तो उसको थोड़ा डीप ब्रीथ लीजिए, ठीक है। सांसें भी आपकी लंबी हो जाएंगी, आयु भी बढ़ जाएगी, ज़्यादा सांस हो जाएंगी, ओके। सो मल्टीपल बेनिफिट्स। तो इसको प्रैक्टिस आप लोग करें, बट सही तरीका होना चाहिए ना, नॉट द रॉन्ग वे ऑफ बहुत सांस लेने में इतना एफर्ट हम वेस्ट कर दें कि उतना रिलैक्सेशन ना मिले बल्कि स्ट्रेस हो जाए, ओके। सो यू शुड नॉट वेस्ट दैट एफर्ट इन ब्रीदिंग, इट शुड बी अ नॉर्मल प्रोसेस। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए। दूसरा, वी कैन डू हेड मसाजेस। शिरोधारा का ट्रीटमेंट ले सकते हैं वंस अ वीक और वंस इन 15 डेज। तो शिरोधारा इज अ थेरेपी जिसमें हम कॉन्टिन्यूस मेडिकेटेड ऑयल आपके फोरहेड पर पोर करते हैं फॉर अराउंड 40-45 मिनट्स। सो दिस टेक्स आउट स्ट्रेस फ्रॉम द डीपर रिसेसेस ऑफ द ब्रेन एंड इट स्ट्रेंथन्स द ब्रेन एंड द स्पाइन। तो ये आप एक्सपीरियंस करिए, 40-45 मिनट का ट्रीटमेंट होता है, और आप एक्सपीरियंस करेंगे कि हर 10-15 मिनट बाद यू आर गेटिंग मोर रिलैक्स्ड एंड मोर रिलैक्स्ड। सो इट्स वेरी रेजुविनेटिंग, ओके। सो I suggest everybody to experience this once, तो काफ़ी अच्छा लगेगा, and you can take it regularly often. So this is a very important part or practice to keep your mind healthy and rejuvenated. दूसरा एक तरीका बताता हूँ मैं आपको, ये भी एक सीक्रेट है। तो इंडिया में अल्जाइमर्स लोगों को नहीं होता था। अल्जाइमर्स आप सबको पता है ना, मेमोरी कम होने लगती है, आदमी बिल्कुल भी कुछ रिमेंबर नहीं कर पाता, and ultimately it is a fatal disease and you know it goes off when a person dies. तो तब तक रहती है, ओल्ड एज बीमारी है, इनक्योरेबल है, तो मेमोरी का बहुत इशू रहता है। तो इंडिया में बिकॉज संस्कृत वाज अ वेरी वेरी वेल स्पोकन लैंग्वेज, एंड संस्कृत मंत्र चैंटिंग की वजह से आप मेमोरी बहुत शार्प था लोगों का, इट वाज ऑलवेज रिटेन्ड, और कभी भी उनको कोई अल्जाइमर्स का इशू नहीं होता। So if you chant some Sanskrit mantras every day, so it itself is a medicine to enhance your memory, okay. Of course you will find a lot of herbs also, Ayurveda में बहुत दवाइयाँ हैं memory enhance करने के लिए, पर this is a very important tool. So every day chant some Sanskrit mantras, it creates nice vibrations in the brain, क्योंकि ये सारा जो sound की जो energy होती है बहुत powerful होती है, और वो आपके नर्वस सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। आपने देखा होगा, कोई अच्छा म्यूजिक सुनेंगे तो मूड अच्छा हो जाता है, कोई फास्ट पॉप म्यूजिक सुना जिसमें बीट्स तेज हैं तो कई बार डांस करने का मन करता है, कोई म्यूजिक समझ में नहीं आया तो कई बार मूड भी इरिटेट हो जाता है कि कितना शोर हो रहा है, बंद करो इसे। तो इसी तरह से हर साउंड का इन्फ्लुएंस है, और साउंड बहुत सटल होती है, बहुत सटल है, ठीक है, जिसको आप देख नहीं सकते, बट इट हैज़ इन्फ्लुएंस ऑन योर cosmic energies. So every day try to practice some mantra chanting, any mantra of your liking. कोई मंत्र नहीं भी पता आपको तो सिंपल ओम चैंटिंग आप कर सकते हैं, which is very very powerful. तो 7 बार, 10 बार, 15 बार, as much as you like, or any other mantra of your liking that you can chant every day. So these are some tools which can help you to improve your memory and mental strength, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं फॉर फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑयलिंग का, जो मैंने भी बताया था, तो वो आप ज़रूर करें, और जब भी समय मिले आयुर्वेदिक थेरेपीज़ को एंजॉय करने का वो ज़रूर करिए। कुछ मेडिसिन लेना चाहते हैं तो मेडिसिन भी ले सकते हैं। So I don't know if all of you know about Jiva Ayurveda or not, but you can connect to
any of our doctors anytime. I think people at Imoha will tell you how to do so, and you can also book an appointment with a doctor if needed. But try to inculcate some Ayurveda into your practice, so which is a science of nature. और जितना हम नेचर से कनेक्टेड रहेंगे उतना हम हेल्दी रहेंगे, जितना डिस्कनेक्ट हो जाएंगे उतना फिर प्रॉब्लम शुरू होगा. ओके, so with this I end my talk, and we can take questions now if anyone has any questions. डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े अच्छे तरीके से और बड़े सिंपल वे में सारी चीजें कवर कर ली. आई एम रियली थैंकफुल टू यू. मैं सिर्फ आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूँ. 18 years बिफोर आई हैड CAD. जी हेलो. जी सुन रहा हूँ सर, बोलिए. हाँ, अभी 6 साल से मैंने आयुर्वेदिक की तरफ ध्यान दिया, तो मैंने मेदोहर वटी और दूसरा ये आपका हृदय वटी शुरू किया. तो उससे मेरे को इतना रिलीफ मिला, बिकॉज नाउ ऑलमोस्ट आई एम टेकिंग ओनली इकोस्प्रिन एट नाइट एंड कोलेस्ट्रॉल के लिए 5 मिलीग्राम रोजवर्स खाता हूँ. डू यू अप्रूव इट? यस वेरी गुड सर. सो देखिए, ये भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आप लेते हैं तो उसके 2 एस्पेक्ट हैं. एक वो है जो आपने फॉलो किया है कि आपने कुछ प्रोडक्ट्स खरीद लिए एंड यू आर टेकिंग इट. नहीं, मैं डॉक्टर को दिखा के. अच्छा, डॉक्टर कंसल्टेशन. दैट्स वेरी गुड. सो यू कैन कंटिन्यू, क्योंकि इसमें क्या है ना, आयुर्वेद में सिर्फ पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है, तो जब तक पूरी कंसल्टेशन नहीं बिल्कुल तब तक एक आइडियल मेडिसिन डिसाइड करना मुश्किल होता है. आजकल ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं. आंवला जूस, एलोवेरा जूस अच्छा है, बट इट इज नॉट द कंप्लीट साइंस ऑफ आयुर्वेदा. तो डेफिनेटली आप जो ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं उससे. थैंक यू. डॉक्टर साहब, अभी मैंने पीछे आपके यहाँ से अपॉइंटमेंट लिया था अपने इमोवा के थ्रू. मेरे को एलर्जी, उन्होंने बताया था आपको एलर्जी है दही की, अब दही बंद कर दीजिए. कुछ उन्होंने मेडिसिन सजेस्ट की थी, दे आर इन 7 नंबर. वो मैं ऑलरेडी शुगर की लेती हूँ, आई एम ऑन इंसुलिन, कोलेस्ट्रॉल की लेती हूँ, तो यही इतनी दवाइयाँ होती है. तो मैंने अपनी एएनएम से बोला पूछना कि 7 मेडिसिन ये हैं और मैं वो दवाइयाँ भी ले रही हूँ. ऐसा तो नहीं है कि जैसे कहते हैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत गर्म होती हैं तो मुझे नुकसान कर जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ गर्म होती हैं, और यूजुअली जो एलर्जी के लिए दवाई दी जाती है वो गर्म नहीं होती है. तो वो तो आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए दिया होगा, तो वो तो कूलिंग ही होगा आपकी बॉडी के लिए. तो क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन आप एक बार अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं जिनसे आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, कि उसको नहीं इधर ही आपके थ्रू से ही, आपके जो डॉक्टर आए थे, डॉक्टर नील, उनसे अपॉइंटमेंट हुई थी. अच्छा, तो आप एक बार डॉक्टर. हाँ जी. करके इफ यू वांट टू ऑल्टर दी. हाँ, फिर उन्होंने उन्होंने कहा आपके एरन से आपको पूरी प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएगी. फिर उसने बोला कि देयर आर 7 नंबर्स. मैंने कहा मैं तो ऑलरेडी इतनी दवाइयाँ लेती हूँ, तो ये भी 7 दवाइयाँ लेंगे तो पता चला मैं डाइजेस्ट कर पाऊंगी कि नहीं. तो आप एक बार मेरे को अपना आईडी शेयर कर दीजिए. तो क्योंकि आपने अभी दवाई ली है या फिर सिर्फ? नहीं, मैं इसी से डर के बैठी हूँ. तो 7 नंबर में कई बार क्या होता है ना कि वो एक पाउडर का कॉम्बिनेशन बना के देते हैं जो आपको एक ही बार में लेना होता है. तो नहीं, वो 7 अलग वो था. अच्छा, सो एनीवे आपका कुछ पेशेंट आईडी या कुछ नंबर है जिससे आपने मेरा नाम किरण केसवानी है. ओके, ऑलराइट. अब ये पीछे थोड़े दिन पहले ही जब थी, मैंने फोन पे अपॉइंटमेंट ली थी. तो आप एक बार आई विल सजेस्ट यू टू गेट इन टच विद डॉक्टर नील अगेन टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या दवाई है, किससे है, और क्या वो कुछ कम कर सकते हैं, बिकॉज यू आर ऑलरेडी. यही मैंने अपने एआरएम को बोला कि आप उनसे ये पूछो कि वो ये कह रही है कि मैं ऑलरेडी ये दवाइयाँ ले रही हूँ, तो मतलब मेरे लिए ठीक रहेगा कि नहीं. क्योंकि उन्होंने कहा था आप दही बंद कर दो, दही से एलर्जी हो जाती है, तो मुझे फर्क पड़ गया. अच्छा, हालांकि मैं दही मुझे बहुत पसंद है कि मैं छाछ या दही जरूर लेती थी, पर मैं आजकल नहीं लेती. आपका छाछ दही पीने का कोटा पूरा हो गया है.
तो आप अभी एक मैं कुछ ना दही ना छाछ ले ही नहीं रही। डॉक्टर साहब मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर। मेरे दोनों पैरों में ना गर्मी पड़ी है जी। मतलब जमीन पे रखता हूँ तो मुझे थोड़ा हीट महसूस होती है, तो इसका कोई इलाज है अपना पैरों की गर्मी थोड़ी खत्म करने के लिए? बाकी दिमाग तो हमारा ठंडा है बिल्कुल, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, बट ओनली थिंग द फीट ऑल द टाइम गेटिंग हॉटर एंड हॉटर। आपको डायबिटीज का शिकायत तो नहीं है सर? नहीं, डायबिटीज नहीं है। ठीक है, आप एक काम करिए, थोड़ा देसी घी का मालिश आप शुरू करिए अपने तलवों पे अभी कुछ दिन के लिए। देसी घी या ताजा मक्खन जो होता है, ठीक है, उसको आप थोड़ा सोने से पहले लगाइए, ठीक है? और नींद ठीक रहती है आपको? नींद भी ठीक है बिल्कुल, और बिल्कुल टाइम के साथ, जैसे आपने बोला है 10 बजे का टाइम है मेरा सोने का, 5 बजे उठता हूँ, एंड जनरली एक दफा रात को उठना पड़ता है, बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम अबाउट 7 आवर्स आई जनरली गेट ए साउंड स्लीप। ठीक है, तो आप थोड़ा सोने से पहले थोड़ा देसी घी का मालिश अपने तलवों पे करें और 2 हफ्ता ये करिए, फिर कुछ तकलीफ अगर फिर भी बनी रहती है तो फिर कंसल्टेशन करना पड़ेगा सर, पूरा हिस्ट्री लेना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि क्या व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई द फीट गेट्स हॉट? सर थोड़ा सा क्या होता है कि 2 कारण होते हैं इसके। एक कारण तो थोड़ा नर्वस सिस्टम से रिलेटेड रहता है कि जब ब्लड सर्कुलेशन अगर प्रॉपरली नहीं है नर्व्स के अंदर, तो वहाँ पे वो थोड़ा शेडिंग उनका होने लगता है, जिस वजह से हीट जनरेट होती है। दूसरा, अगर कोई पास्ट हिस्ट्री रही है बॉडी में ज़्यादा हीट की, या फिर आपके लिवर में ज़्यादा गर्मी का अगर हिस्ट्री रहा है, तो उससे भी हो सकता है। तो एक बार थोड़ा सा हिस्ट्री लेना पड़ेगा आपका पूरा, उसके बाद ही सही कारण, तो उसके बाद ही डायग्नोज होगा। बट फॉर नाउ यू कैन स्टार्ट विद एप्लीकेशन ऑफ घी। ये दोनों कारणों के लिए हेल्प करेगा, थोड़ा ठंडा भी होता है और थोड़ा नसों को भी ताकत मिलेगी इससे। कितने रात को सोने से पहले या किस टाइम पे? कुछ सोने से पहले करिए तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। वेट कम करने के लिए आपको सजेस्ट करेंगे बॉडी मसाज में कुछ ऐसी मेडिसिन है जिसको खाने से Ladies and gentlemen, one second, please. Can we have the questions one by one, because we just can't make out what is being asked. So Sushil ji, you were asking a question. Please just raise your hands and be on video. I'll come to you one by one. Sushil ji, please ask your question. हाँ जी। ये डॉक्टर साहब बताइए कि आपने मसाज के लिए रिकमेंड किया है, तो मसाज क्या सरसों ऑयल का बेटर है या देसी घी का बेटर है ओवरऑल दी एंटायर बॉडी? यार एंटायर बॉडी पे अगर आप सरसों का तेल लगाते हैं और लगाते आए हैं तो आप उसको लगा सकते हैं, लेकिन अगर अभी स्टार्ट करना है कोई मसाज और अभी तक कुछ नहीं किया है तो आप तिल के तेल से स्टार्ट करिए। सरसों का तेल थोड़ा गर्म होता है तो सबको नहीं सूट करता, अगर आप उसको हैबिट नहीं है आपको उसका। तो ये बचपन में तो करता रहा हूँ, बचपन में किया है तो आप सरसों के तेल से स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Vandana ji, you want to ask? Yes, please. I want to ask, Dr. Saab, do you have anything for autoimmune diseases? Ritu said that you are an autoimmune specialist. I have a number of autoimmune diseases, starting with lupus, and I have quite severe autoimmune hepatitis and lung disease. Okay. So, what would you suggest for this? तो मैम देखिए, जो स्पेसिफिक डिजीज है उसमें थोड़ा सा ना कंसल्टेशन ही करना पड़ेगा। Okay. तो ऑटोइम्यूनिटी का कारण देखना पड़ता है, फिजिकल कारण है, साइकोलॉजिकल कारण है, एंड देन ओनली वी कैन ब्रेक दी ऑटोइम्यूनिटी। और क्योंकि मल्टीपल डिजीज आपने 2-3 बता दी तो काफी क्रॉनिक हो गया है, तो सजेस्ट यू इफ वी कैन डू अ पर्सनलाइज्ड पर्सनल कंसल्टेशन। Would you leave an address or number or email or something for us in the chat box or wherever? हाँ जी, so I think the process is that you connect with us through Emoha. So all right, yeah, we can do that. Thank you very much. Harish ji, you wanted to ask? हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया अभी ब्राह्मी, शतावरी या सुगंधा और अर्जुन, क्या ये हम विदाउट कंसल्टेशन ये टैबलेट ले सकते हैं? जी सर, तो ये जो कंसल्टेशंस का, ये जो दवाइयों का मैंने जिक्र किया, ये आप विदाउट कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। तो दीज आर फूड सप्लीमेंट्स। तो और ये अर्जुन अच्छा कार्डियक टॉनिक है। नहीं, अर्जुन तो मैं अर्जुन और स्ट्रेस की तो मैं यूज कर रहा हूँ 2-3 साल से। ठीक है, ठीक है। तो मैं एक्चुअली जीवा का काफी रेगुलर मैं 2-3 साल से बहुत यूज कर रहा हूँ चीजें,
जी सर। लेकिन मैं इसके बारे में जानना चाहता था, अश्वगंधा, ब्राह्मी और शतावरी के बारे में। हाँ जी, तो आप अगर ऑलरेडी अर्जुन और स्ट्रेस फ्री ले रहे हैं तो आप ब्राह्मी या फिर अश्वगंधा में से कोई एक चीज और ऐड कर सकते हैं। सारा पांचों अभी लेने का फिर जरूरत नहीं है। हाँ, 5 तो इकट्ठी नहीं लेनी चाहिए, 2 या 3 का क्रॉस, फिर 2-3 महीने बाद चेंज करते रहें इसको, इंटरचेंज। क्योंकि स्ट्रेस फ्री के अंदर भी अश्वगंधा थोड़ा मात्रा में है और ब्राह्मी भी है, तो इसलिए हाँ जी और लेने का फिर आवश्यकता नहीं। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। हाँ जी, ये देसी खांड और कच्ची खांड में क्या डिफरेंस है? हाँ जी, देसी खांड कच्ची खांड सेम ही चीज है, तो देसी खांड का यूज आप कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि मैं जैगरी ही प्रेफर करती हूँ, मीठा बहुत अच्छा लगता है, पर गुड़ से ही मैं अपने आप को कंपनसेट कर लेती। तो देसी खांड है, तो मैंने वही पूछा कच्ची खांड और देसी खांड में क्या फर्क है? हाँ जी, देसी खांड यूज कर सकते हैं आप, मिश्री यूज कर सकते हैं मीठे के लिए, ज्यादा भी गुड़ की शक्कर भी यूज कर सकते हैं। अगर ज्यादा मिठास नहीं चाहिए तो जो भी रेसिपी बना रहे हैं उसमें थोड़ा छुआरा डालिए, तो उससे भी थोड़ा मीठापन आ जाता है। खजूर, हाँ जी, खजूर छुआरा। सब आए थे, उन्होंने KSM अश्वगंधा का बताया था, KSM नाम, वो कहीं अवेलेबल ही नहीं है, ऑनलाइन भी नहीं है। क्या चीज में, मैं समझा नहीं। उन्होंने अश्वगंधा का एक ब्रांड बताया था, KSM। किसने? एक डॉक्टर साहब आए थे, मुझे उनका नाम नहीं याद। अच्छा, डॉक्टर ग्रेवाल के साथ आए थे, तो उन्होंने बोला था it is available in Amazon. I take it. It is available in Amazon. See, okay. Available. I got it from Amazon only. Okay. अच्छा। तो ये नाइट इवनिंग में खाते हैं ना, सोने से पहले रात को लेते हैं। After dinner I take it. डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। मिस्टर सोहन, हाँ जी डॉक्टर साहब, ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ये रेफरेंस दिया ना शिरोधारा का, कितने इंटरवल्स में ये इफेक्टिव हो सकता है? क्योंकि हम रेगुलर तो कभी लेते ही नहीं है, ना लेने के बराबर ही है। तो सर वो है क्या कि अगर आप प्रिवेंटिव ले रहे हैं तो आप उसको हफ्ते में या 15 दिन में एक बार लीजिए। कुछ क्योर उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 7 सिटिंग्स रेगुलरली होनी चाहिए उसकी। 7 sittings after how many days? 7 sittings means 7 in a month or after a week or so? नहीं, रेगुलरली 7 दिन रेगुलर। अगर कोई उससे कोई डिजीज स्पेसिफिक लेना चाहते हैं एज अ क्योर, तो 5 या 7 दिन का होना चाहिए, तब कुछ इफेक्ट दिखता है। अगर आप उसको सिर्फ एज अ प्रिवेंटिव की, थोड़ा माइंड रिलैक्स रहे, ज्यादा स्ट्रेस वगैरह ना हो, तो आप हफ्ते में या 15 दिन में एक बार ले सकते हैं। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब, मुझे कोरोना हुआ था काफी समय पहले, उसके बाद से ना मुझे बलगम रहता है मुंह में, यहाँ पे गले में, तो व्हाट शुड आई डू फॉर दैट? बलगम रहता है कंसिस्टेंटली। आई हैव टेकन gargles, I've done it, I've been trying it. ठीक है, आप थोड़ा सा एक काम कर सकते हैं जी, आप घर पे अदरक का रस निकालिए, लगभग आधा चम्मच या 1 चम्मच के आसपास, और उसमें 1 चम्मच शहद मिला के आप डेली उसको पीजिए, ठीक है। दूसरा, अपने डाइट पे ध्यान दें कि कुछ ठंडा नहीं खाना और ओवर ईटिंग ना करें, थोड़ा हल्का खाइए, थोड़ा सूप के फॉर्म में ज्यादा खाना लीजिए। थैंक यू। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि एलिमेंट्स खाने का शौक तो मुझको बहुत है, पर डाइटिशियन हमारे कहते हैं कि बगैर मतलब छिलके के साथ ही खाया जाता, किसी टाइम पे खाया जा सकता है, और आयुर्वेद से हमें ये पता चलता है कि शाम को भिगोना चाहिए और अगले दिन छिलका निकाल के खाना चाहिए। तो आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि छिलका निकालना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? हाँ जी, छिलका निकालना बिल्कुल ज़रूरी है सर। तो छिलका निकालने से वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है एलमंड, और थोड़ा भिगो के रखने से उसकी गर्मी भी कम हो जाती है। तो अगर छिलका खाएंगे तो उनमें टैनिन होते हैं, तो कई बार डाइजेशन में दिक्कत देते हैं। तो बेस्ट तो ये है कि उसको छिलका निकाल के ही खाया जाए। कोई फाइबर का तो नहीं है कि छिलके में फाइबर ज़्यादा होता है तो छिलके के साथ लेना चाहिए? फाइबर बाकी चीज़ों से मिल जाएगा आपको,
बादाम तो फाइबर के लिए नहीं खा रहे, बादाम तो ताकत के लिए खा रहे हैं। छिलका मतलब रिमूव कर देना ज्यादा अच्छा है। छिलका रिमूव करना ही बेस्ट है, ताकि वो थोड़ा इजीली डाइजेस्ट हो जाए। थैंक यू डॉक्टर साहब। You're welcome, sir. Somebody had just asked a question here. हाँ डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन है। जी सर। कि ये कहा जाता है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में हैवी मेटल्स होते हैं और वो बॉडी में हार्म कर सकते हैं। एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये भी कहा जाता है कि जो आयुर्वेदिक की मेडिसिन होती है वो जनरल पब्लिक पे ट्राई आउट नहीं होती है, तो इसका कितना असर होगा या नहीं होगा ये प्रूवन, साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। तो ये मेरे दो क्वेश्चंस हैं। मैं सर दोनों क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ। जो पहला क्वेश्चन है हैवी मेटल्स वाला, तो हैवी मेटल्स बहुत कम दवाइयों में यूज होता है और ऐसा कोई भी हैवी मेटल नहीं है जो मॉडर्न साइंस में भी ना यूज होता हो एज अ मेडिसिन। तो सारी चीज़ें उसमें यूज होती हैं, बल्कि आयुर्वेद में जो यूज होता है वो बिल्कुल प्योरीफाइड फॉर्म में होता है और उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है। तो जो मेटल्स यूज होते हैं बल्कि मेडिसिन की एफिकेसी बढ़ाने के लिए और रिलीफ देने के लिए हेल्पफुल होते हैं। और जो आजकल का अगर टाइम हम देखें तो जो अच्छी क्वालिटी का खाना ही अवेलेबल नहीं है, तो औषधियाँ भी इतनी इफेक्टिव, उनका जो पोटेंसी है वो थोड़ा कम है, क्योंकि डिफोरेस्टेशन बहुत है, पॉल्यूशन बहुत है, केमिकल्स का यूज बहुत है। तो ऐसे में मेटल्स की एफिकेसी तो कम नहीं होती है। तो उसको अगर प्यूरीफाई फॉर्म में यूज किया जाए तो वो बिल्कुल नुकसान नहीं देते हैं, बॉडी में कहीं अब्जॉर्ब होते ही नहीं है, दे गो आउट एज इट इज, जो भस्में जो बनती हैं। लेकिन वो बहुत कम केसेस में यूज होती हैं, हर बीमारी में हर पेशेंट को दी जाती हैं। अगर सही तरीके से कोई नहीं बना रहा है उसको या ऐसी मेटल डाल रहा है तो वो शायद नुकसान दे बॉडी को। लेकिन पूरा जो भारत सरकार है, उनका जो आयुष मंत्रालय है, उन्होंने प्रोटोकॉल्स बनाए हुए हैं कि किस तरह से आप मेटल को प्यूरीफाई करेंगे, कैसे यूज करेंगे। तो वो अगर उस विधि से सारा चलता है प्रोसेस, जो फार्मेसी रजिस्टर्ड है उनसे आप लेंगे, तो उसमें कोई ऐसा हार्म नहीं, बल्कि इट इज़ वेरी गुड। और जितने भी ऋषि मुनि हैं, सेजिज हैं, जो कई 100 वर्ष तक जिए हैं, उन्होंने सबने इसका प्रयोग किया है। पारे का भी प्रयोग किया है, उन्होंने पारा को भी खाया हुआ है, तो उससे तो बहुत अच्छे मेडिसिनल इफेक्ट्स हैं। और दूसरा जो आपने कहा कि प्रयोग नहीं किया गया, तो जितने भी शास्त्र हैं आयुर्वेद के जो लिखे गए हैं, ये प्रयोग के बाद ही लिखे गए हैं। तो उन्होंने केवल ऐसी कोई दिव्य शक्ति आई और उसने लिख दिया, ऐसा नहीं हुआ है। तो उन्होंने हर चीज़ को अध्ययन किया, उसको रिसर्च किया, उसके बाद लिखा है। और आज की डेट में भी कोई नई दवाई अगर बनती है आयुर्वेद में, तो उसकी प्रॉपर रिसर्च होके फिर मार्केट में निकाली जाती है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि एज अ फूड सप्लीमेंट आप खाते हैं, जैसे आंवला है, एलोवेरा है या और अन्य हर्ब हैं, तो वो इट इज़ लाइक अ सप्लीमेंट। तो उस पर हो सकता है कि उस तरह का मेडिसिनल रिसर्च हर एक चीज़ पर ना हो जो कि आपके पास मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन जो एज अ दवाई और क्योर के लिए कोई चीज़ रिलीज होगी तो डेफिनेटली उसका एक रिसर्च बैकअप होता है। तो ये आयुर्वेदिक मेडिसिन जो होती है ये ड्रग्स कंट्रोलर के अंडर आती हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल, आयुर्वेदिक फार्माकोपिया है और ड्रग्स का स्टैंडर्डाइजेशन भी होता है। और जो एपीआई है उसमें एक एक ड्रग का स्टैंडर्डाइजेशन है कि कितना आपको कितनी मात्रा में कितनी डोज में उसको लेना है। तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल कंट्रोल्ड हैं। और जो क्लासिकल फॉर्मुलेशंस हैं उनके अंदर मात्रा एज इट इज़ लिखी हुई है, तो उसको तो वैसे ही यूज़ किया जाता है जो जैसे कि बुक्स में मेंशन है। Somebody else also wanted to ask a question. I think स्वतंत्र जी आप कुछ पूछना चाहती हैं? मिसेस यादव। स्वतंत्र जी ना? हाँ, I don't see her here. In the meantime, रेणु जी प्लीज पूछिए। रेणु जी प्लीज आस्क। आप म्यूट पे हैं। You'll have to unmute. हाँ जी, मेरे को अप्रैल में कोविड हुआ था, तो उसके बाद से मेरे को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है टांगों में भी, और कुछ मेरे को डिजीनेस भी फील होती है। और रात को जब करवट बदलती हूँ तब भी मेरे को चक्कर सा आता है, अचानक उठ जाऊं तब भी आता है, और लाइट हेडेडनेस है।
तो देखिए थोड़ा पोस्ट कोविड वीकनेस तो है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो अपने डाइट पर भी ध्यान दीजिए कि अच्छा आप डाइट ले रहे हैं, न्यूट्रिशियस डाइट ले रहे हैं। तो डाइट के अंदर आपके थोड़ा दूध भी होना चाहिए, कुछ ड्राई फ्रूट्स भी होने चाहिए, रेगुलर कुछ फ्रेश फ्रूट्स भी आप खाएं, और जो भी खाना है वो डाइजेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हैवी खा लिया और डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सूप्स वगैरह भी लीजिए अपना, ताकि इजीली डाइजेस्टेबल रहे आपका खाना। तो डाइट से मैक्सिमम न्यूट्रिशन मिलेगा आपको। दूसरा, आप थोड़ा ऑयल मसाज अपना करें बॉडी का। तो होता क्या है कि जब भी कोई बीमारी शरीर में आती है तो उसका जो नुकसान शरीर में हुआ उसको हम रेजुविनेट करने के लिए कुछ चीज़ें लेते नहीं हैं। तो अगर हम थोड़ा उसके रेजुविनेशन पर ध्यान देंगे तो उस बीमारी से आप उसके साइड इफेक्ट से ओवरकम कर जाते हैं। तो आयुर्वेद में कुछ ऐसे और रसायन हैं जिनको आप रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं टू एज अ पर्पज ऑफ रेजुविनेशन, ठीक है। जैसे सिंपल एक च्यवनप्राश भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लीजिए, लेकिन 2-2 चम्मच सुबह, 2-2 चम्मच शाम को इस क्वांटिटी में आप लीजिए, और खाने से पहले इसको लीजिए। एक बार खाने से पहले सुबह और एक बार सोते समय रात को। तो एक पूरा फॉर्मूला है ओवरऑल रेजुविनेशन के लिए, तो ये भी अच्छा रहेगा। एंड ऑफ कोर्स कुछ और डेफिशिएंसीज अगर बॉडी में हैं तो उनको फुलफिल करने के लिए कुछ स्पेसिफिक और दवाई देना पड़ेगा। सो अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू टू कनेक्ट विद आवर डॉक्टर, ताकि आपको एक बेस्ट सोल्यूशन वो दे सकें। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन। हाँ जी मैम। ये त्रिफला पाउडर जो होता है, इज इट यूजफुल फॉर डाइजेशन और इन कॉन्स्टिपेशन? हाँ जी, तो त्रिफला में मेन हरड़ एक उसका मेन मुख्य इंग्रेडिएंट है जो कि बोवेल एवोकेशन में हेल्प करता है, और बाकी आंवला है, बहेड़ा है, तो वो डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो त्रिफला को आप ले सकते हैं रेगुलरली, लंबे समय तक ले सकते हैं। बोथ द टाइम्स, मॉर्निंग इवनिंग बोथ द टाइम्स? एक ही बार लीजिए, रात को लीजिए सोने से पहले। कब तक कंटिन्यू करना? अगर आप किसी समस्या के लिए ले रहे हैं तो उसको आप तब तक ले सकते हैं जब तक वो समस्या दूर नहीं होती है। यदि ऐसे ही थोड़ा रेजुविनेशन के लिए लेना चाहते हैं तो आप उसको लंबे समय तक ले सकते हैं, इवन 1.5 साल तक ले सकते हैं। नॉर्मल वाटर से या इट शुड बी ल्यूकवार्म? हाँ, बेटर रहेगा लूकवार्म वाटर। लूकवार्म वाटर इज ऑलवेज बेटर देन अ नॉर्मल वाटर इफ यू आर टेकिंग एनी मेडिसिन और हर्ब। डॉक्टर साहब, फैटी लीवर के लिए कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन है? बहुत सारी हैं सर। लिवर के लिए तो आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयाँ हैं। तो जो भी देखिए, डिजीज अगर कोई है तो अगेन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है कि ये बीमारी डायबिटीज के लिए ये दवाई, बीपी के लिए ये दवाई, इसके लिए दवाई। तो हम आयुर्वेद में पेशेंट का जब कंसल्टेशन करते हैं तो 10 से 12 पैरामीटर्स हम एनालाइज करते हैं बिफोर डिसाइडिंग अ प्रिस्क्रिप्शन। तो उसमें आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, आपको बीमारी का कारण क्या है, आपका कस्टमाइजेशन किस तरह का है, डेली रूटीन क्या है, आपकी प्रकृति कौन सी है, तो सारा डिसाइड करके फिर प्रिस्क्रिप्शन बनता है। तो इसलिए फैटी लिवर के लिए जो मैंने बाकी टिप्स बताई थी वो थोड़ा जेनरिक हैं। अगर दवाई की बात करें तो बेटर रहेगा, अगेन इफ एनी मेडिसिनल किसी भी डिजीज का आपको मेडिसिन का अगर डिस्कशन करना है तो इट विल बी बेटर इफ वी book a personal consultation and then get a prescription from the doctor. ये कंसल्टेशन फिजिकल कंसल्टेशन की ऑनलाइन आल्सो? ऑनलाइन भी कर सकते हैं, फिजिकल भी कर सकते हैं, जो आपकी सुविधाजनक हो, जो आपके लिए। थैंक यू डॉक्टर सर। So, right, any more questions? We'll take one last question if anyone has anything. Mrs. Yadav, किसी ने बोला था, I can't see her here. Mrs. Yadav, are you there? Yeah. Can you please tell us about navel oiling? Thank you, doctor, for this wonderful talk. And I just want to know that what is the importance of navel oiling? So many times it is prescribed, to be putting coconut oil or other oils in the navel area so that it is beneficial for the system. तो नेवल ऑयलिंग देखिए,
जो आपका नाभि होता है, इट इज अ सेंटर पॉइंट जो कि पूरी बॉडी में लिब्रिकेशन पहुंचाता है जब आप वहाँ पर ऑयल लगाते हैं। तो अगर क्रैक लिप्स हैं, क्रैकिंग ऑफ हील्स है, या ड्राइनेस, मुंह के अंदर ड्राइनेस है, एनीवेयर ड्राइनेस, so this helps in lubrication of the whole system, and also it enhances metabolism. थोड़ा अच्छा मेटाबॉलिज्म को एनहांस करता है वो। तो उसको आप डेली अगर नाभि में तेल लगाएंगे तो आपका जो डाइजेशन है वो भी बेटर होगा। ठीक है, तो डेली बेस्ट टाइम रहेगा कि आप रात को सोने से पहले थोड़ा नाभि में ऑयल लगा कर सोएं, तो उससे ड्राइनेस नहीं होगी बॉडी में और मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। Which oil, sir? Which oil should be used? So you can use coconut oil, you can use desi ghee, you can use sesame oil, til ka tel. So thank you so much, Dr. Keshav, for such a wonderful session. Thank you everyone. And I think आपने बहुत सारी बातें ऐसे बताई जो बहुत सिंपल हैं, but yet they will enhance our lifestyle. कहीं कहीं पे हम कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, कहीं कहीं पे हम चीज़ें भूल जाते हैं या हम कैजुअली ले लेते हैं। सो छोटी छोटी बातें हैं जिनको आई थिंक हम अगर चेंज कर पाएंगे तो बहुत हमें हमारी हेल्थ पे फर्क पड़ेगा, विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि आज जिस तरह का माहौल है एंड सबको कुछ ना कुछ हो रहा है, तो अगर हम ये अपने डाइट में चेंजेस कर सके, या जैसे आपने कहा टाइम पे सोना, जो कि हम सब अब भूल गए हैं बिकॉज कभी टीवी चलता रहता है, कभी हम मोबाइल पे होते हैं, कभी कुछ होना होता है। So I think we all have forgotten to sleep in time, and 10 I think is always a little too early for everyone. But these are small things which we can change in our lives. And various other things जैसे आपने कहा massaging, I think बहुत सारे लोग समझते हैं it is just a luxury कि हम मसाज करवा रहे हैं, but yes, उसका जो फर्क है, उसकी जो हमारे बॉडी पे इफेक्ट होता है, extremely important. So बहुत सिंपल चीज़ है, बट एंड जिस तरह से आपने समझाई बहुत ही सिंपल वे में, एंड इतने पेशेंटली आपने सारे क्वेश्चंस आंसर करे, सो थैंक यू सो मच। एंड in fact it was a very knowledgeable and insightful kind of a session, so thank you so much for coming here, Dr. Keshav, and इतने अच्छे से explain करने के लिए भी, and I think you've motivated all of us to do a lot of things now which we were ignoring, and I'm sure all of us will start, and a lot of people would like to consult you on various things. So anybody, as you all know, we have partnered with Jiva, so anytime you do want a consultation or something, you can get back to your relationship manager and let us know, and we will be raising up the request and getting the appointment fixed for all of you. So जिसको भी लगता है please अपने relationship manager को जरूर बताइएगा। And thank you so much once again, Dr. Keshav, and we hope to see you here again with something more. And I think the elders are also very thankful for giving out all these wonderful tips that you just did. So बस I think जैसे हम सब कहते हैं कि बगीचे जो होते हैं वो फूल से भरे होने चाहिए, जीवन जो है हमारी हमेशा खुशियों से भरी होनी चाहिए, जीवन जो है वो बीमारी से दूर होना चाहिए और हमेशा निरोग होना चाहिए, और ऐसे ही हम सबके लिए दुआ करेंगे सबके लिए with all the tips that you've given us. So thank you so much everyone, and see you all tomorrow morning at 8 o'clock sharp for a physiotherapy session, and afternoon we see you for a tech session with Sanjana, and evening of course we have a dietitian session with Rashmi. So till then, follow all the tips and be healthy and keep smiling always. So thank you so much, Dr. Keshav, once again, and see you all tomorrow.